بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی محل میں خوش آمدید ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ گائز، میں ان سب چیزوں پر بلیو نہیں کرتا۔ یہ جن، چڑیل، بھوت وغیرہ یہ سب فلموں ڈراموں تک ٹھیک لگتا ہے، ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، سب بکواس ہے۔ عدنان جو بھوت پریت کے قصے سن کر ناک تک عاجز آ چکا تھا، چڑھ کر بولا، ریئل لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور تمہیں پتا ہے جنوں اور شیاطین کے وجود کا انکار کرنا اسلام اور ایمان کے منافی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جنات کچھ نہیں بلکہ انسان کے ذہن کا گمان ہے، اور کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں تمام اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک کے عقائد کے برعکس ہیں، بلکہ یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ جنات کا ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ نمرہ جو کہ بہت ہی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، عدنان کے انکار پر اسے پورا لیکچر دے ڈالا، تو فیضان نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم تو چپ ہی کر کے بیٹھو۔ ارے بھائی وہ کیوں؟ نمرہ اپنے پیچھے دیکھو کون کھڑا ہے، تو چیخیں مارتی ہوئی بھاگ جاؤ گی، یہ لیکچر سب بھول جائے گا۔ جی نہیں، میں اتنا نہیں ڈرتی جتنا کہ تم لوگ سمجھ رہے ہو، وہ پیپسی کا گھونٹ لیتے ہوئے بولی۔ مانتی تو ہو نا کہ ڈرپوک ہو، وہ اسے دوبارہ چھیڑتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں ڈرپوک نہیں ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اچھا گائز، لڑنے مرنے مت بیٹھ جانا۔ تجھے پتا ہے نا عدنان، یہ اپنی یونیورسٹی کے پیچھے جو باغ ہے، وہاں اینڈ میں جو کمرہ بنا ہوا ہے، کہتے ہیں نا وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، جو بھی جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا۔ سنا ہے اس کمرے میں کوئی مالی بہوا رہتا تھا، وہ باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ایک دن اس کمرے میں مردہ پایا گیا، اس کے بعد وہاں کوئی نہیں جاتا۔ عمار جو یہ سب کچھ بہت دیر سے سن رہا تھا اچانک بولا، اور عدنان کا بے ساختہ کہکہا نکل گیا۔ یہ بکواس تجھے کس نے سنا دی؟ وہ عمار کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ کل جواد لوگوں سے سنا تھا، میں نے بھی، شاید وہ سچ کہہ رہے تھے۔ فیضان نے عدنان کی سائیڈ لی۔ اچھا ایسی بات ہے تو ہم سب آج رات اسی روم میں ٹھہریں گے۔ عدنان تیزی سے بولا۔ تو پاگل ہو گیا کیا؟ اس میں پاگل پن والی کیا بات ہے؟ نہیں، ہم میں سے کوئی وہاں نہیں جائے گا، تجھے اکیلے جانا ہے تو جا۔ عمار غصے سے بولا۔ اوکے، میں اکیلے چلا جاؤں گا۔ وہ بولا۔ نہیں عدنان، تم بالکل نہیں جاؤ گے۔ جانا تو پڑے گا یار، تاکہ تم لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ بھوت ووت سب بکواس ہے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ یہ تو اچھا نہیں کر رہا عدنان، پچھتائے گا، دیکھ لینا۔ فیضان جذباتی ہوتے ہوئے بولا۔ او یار کچھ نہیں ہوتا، ٹینشن مت لے، بس رات تم لوگ مجھے چھوڑ کر جانا اور صبح 10 بجے تم لوگ آ کر دیکھ لینا۔ میں کل تم لوگوں کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ بھوت وغیرہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ سب نے اسے سمجھایا مگر وہ نہ مانا، اور آخر کار اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور رات ٹھیک 8 بجے وہ لوگ اسے باغ والے اس روم میں چھوڑ آئے۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ سب پوری رات اس کے روم کے باہر ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے، ان کے دوست کو کسی بھی وقت ان کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ساری رات وہ لوگ سردی میں ٹھٹھرتے رہے مگر اپنے دوست کو اکیلا نہ چھوڑا۔ خاموشی کیوں ہے؟ عدنان کو کچھ ہو تو نہیں کیا؟ سب کا صبر یہی تھا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی وہ سب کمرے کی طرف لپکے، حالانکہ عدنان نے 10 بجے آنے کو کہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں کونے میں پڑی چیئر پر گئیں، جس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا جو مسلسل ہل رہا تھا۔ عدنان، یہ بات کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تو ٹھیک ہے یار، یہ فیضان تھا۔ مسلسل ہلتی کرسی رکی تھی اور گھومی۔ چیئر پر عدنان بیٹھا ہوا تھا مگر آنکھیں بند تھیں۔ عدنان، تھینک گاڈ تو ٹھیک ہے، ڈرا دیا تھا تو نے ہم سب کو۔ وہ سب شکر کا کلمہ پڑھتے آگے بڑھے۔ چیئر پر بیٹھے عدنان کی آنکھیں کھلی، بڑھتے قدم ساکت ہو گئے۔ لڑکیاں چیختی ہوئی لڑکوں کے پیچھے جا چھپیں، اور وہ دونوں پھٹی آنکھوں سے عدنان کو دیکھ رہے تھے۔ آ گئے تم لوگ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ فل سفید آنکھیں اور گہرے سیاہ، ایک دھیرے سے کھلتی ہوئی پتلی سے خون کی پتلی سی دھار بہ رہی تھی۔
वो अदनान ही था, मगर आवाज उसकी नहीं थी, भारी मगर कपकपाती हुई आवाज। वो चारों को देखकर मुस्कुराया और लड़खड़ाता हुआ उनकी संग बढ़ने लगा। कौन हो तुम? अदनान कहाँ है? हमारा दोस्त कहाँ है? फैजान ने डरते डरते कहा। उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर लड़कियों की चीखें मजीद बुलंद हो गईं। फैजान की बात पर वो जोर जोर से कहकहे लगाने लगा। अदनान के पास जाना है? तो आओ, तुझे तेरे दोस्त से मिलवा लाऊं। वो हाँफता कांपता हुआ फैजान के करीब जाने लगा। नहीं नहीं फैजान, इसने अदनान को मार डाला है, तुमको भी मार डालेगा, चलो यहाँ से प्लीज। निम्रा बेतहाशा रोते हुए कहने लगी। इससे पहले कि वो सब भागते, अदनान का कहकहा सबको रुकने पर मजबूर कर गया था। वो सब हैरान थे, अदनान को देख रहे थे, जो हंसने के बाद अब झुककर आंख से लेंसेज निकाल रहा था। फिर माथे पर लगे कलर को जेब से रुमाल निकालकर साफ करने लगा। साथ ही उनका रिकॉर्ड लगा रहा था, जो पसीने से शराबोर दिल ही दिल में एक्टिंग की दाद दे रहे थे। वो सब अम्मार के फ्लैट पर जमा थे और एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। वो हंस हंस कर सुबह से बेहाल हो रहे थे, पेट में भी दर्द होने लगा। मैंने तुम लोगों को कहा था ना, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। अदनान कारपेट पे ढेर उनसे कह रहा था। पास ही फैजान और अम्मार लेटे हुए थे। निम्रा और सना सोफे पर बैठी हुई थी। तुम मानो या ना मानो, भूत तो होते हैं, मगर ये बाग वाले कमरे वाली लगता है किसी ने उड़ाई हुई थी। फैजान बोला। यार तुम लोग मान क्यों नहीं लेते कि ऐसा कुछ नहीं है? अदनान चिढ़कर बोला। अब ऐसे तो ना कहो अदनान, हमारे गांव में एक पहाड़ी है, वहाँ मशहूर है कि जुमेरात वाले दिन वहाँ एक जोड़ा आकर मिलता है, लड़का और लड़की, असर के बाद, और जो कोई बंदा इन दोनों को देख ले वो जोड़ा उनको मार देता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग असर के बाद उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाते। सना चिप्स खाते हुए बोली। तीनों लड़के हवन्नकों की तरह उसे देखने लगे। सबसे पहले अदनान को होश आया। ये फूट किस संग की है जनाब? वो इसका मजाक उड़ाते हुए बोला। फूट नहीं, हकीकत है, मैं वहाँ रहती हूँ, मुझे पता है, वो गुस्से से बोली। फिर वो भूत नहीं होंगे, कोई इंसान ही होंगे जो वहाँ छुप छुप कर मिलते होंगे और अफवाह फैला रखी है कि कोई उस जगह आ ना सके और वो आराम से मुलाकात करें। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, मैंने तो सोचा ही नहीं। फैजान बोला। हो सकता है, सना सच कहती हो। निम्रा बोली। चलो फिर डन करो, ये छुट्टियां हम सब सना के गांव गुजारने वाले हैं और इन दोनों का जो वहाँ मिलते हैं भांडा पूरे गांव के सामने फोड़ेंगे। अदनान फिर जोश में आया। हाँ यार, मजा भी आएगा। फैजान और अम्मार भी रजामंद हो गए। मैं और निम्रा नहीं जा रहे, समझे तुम लोग? सना ने गुर्रा कर कहा। तुम जानती हो, हम कहीं भी जाएं सब साथ जाते हैं। तुम दोनों नहीं जाओगी तो उठा कर ले जाएंगे। फैजान ने आंखें दिखाई। तुम लोग रिस्क ले रहे हो यार। सना बेबस हुई। नहीं, तुम लोग नहीं, हम रिस्क ले रहे हैं और हमें तुम भी शामिल हो। अदनान बोला तो मुंह बनाकर रह गई। वो सब अच्छे खासे अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मिडिल से सब साथ साथ थे, सिर्फ सना थी जिसने उन्हें मैट्रिक से ज्वाइन किया था। ये गांव की रिहायशी थी, गांव में स्कूल मैट्रिक तक था, इसीलिए वालिदैन सिर्फ सना की आला तालीम के लिए गांव छोड़कर शहर आ गए थे। अदनान सना का दूर का कजन था, दोस्ती के साथ साथ बात पसंदीदगी तक चली गई थी, तो दोनों के वालिदैन ने उन्हें निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन में बांध दिया था। फैजान और निम्रा में अंडरस्टैंडिंग थी और निम्रा अदनान पर मरती थी। अदनान किस में इंटरेस्ट लेता था ये बात कोई नहीं जानता था। फैजान और अम्मार के कुरेदने पर उसे टाल दिया और हमेशा कहता कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करूंगा वो तुम सबसे अलग होगी। इस बात से सबसे ज्यादा मायूसी निम्रा को हुई थी। 2-4 दिन रोने धोने के बाद उसने फैजान की मोहब्बत के आगे सर झुका दिया था। दोनों की बाकायदा तौर पर मंगनी हो चुकी थी। जब से उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तब से आसपास से बहुत सी उड़ती फिरती खबरें आ रही थीं कि ये यूनिवर्सिटी आसिफ ज़दा है। पहले तो ये बात हंसी में उड़ा देते थे, मगर अब कुछ डर उनके दिल में बैठ गया था। अदनान ने वो डर भी उनके दिल से निकाल बाहर किया। अब मसला सना के गांव का आ गया था। सब दोस्तों ने प्लान किया, मंगल के रोज निकलेंगे और बुध को जगह देखने जाएंगे और जुमेरात को अपना मिशन स्टार्ट करेंगे।
मंगल को 10 बजे नाश्ते के बाद निकलते ही 8 घंटे का सफर था। खाते पीते हंसी मजाक करते वो वक्त कब गुजर गया किसी को पता ही ना चला। शाम 7 बजे वो थके हारे पहुंचे। सना के पुराने वाले घर में ठहर गए। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं ढेर हो गया। अगले दिन सब तैयार होकर उस पहाड़ी पर पहुंचे। वो जगह घर से 3-4 घंटे की मुसाफत पर थी। आगे पीछे घूमकर कुछ प्लान वगैरह किया और फिर घर वापस आ गए। जुमेरात वाले दिन सब जोहर की नमाज के बाद घर से रवाना हुए। असर से आधा घंटा पहले वहां पहुंच गए और उस जगह का मुआयना करने लगे और फिर वो सब एक पत्थर के पीछे छुपकर बैठ गए। असर की अजानें शुरू हो गई। अब उन्हें इस जोड़े का इंतजार था जिसने सबको डरा रखा था। वो सब बहुत एक्साइटेड थे। आधा घंटा गुजार कर 1 घंटा और गुजर गया। वो लोग बैठ कर थक चुके थे। जब 1.5 घंटा गुजर गया तो फैजान बोल उठा, यार मुझे लगता है वो लोग नहीं आने वाले, मगरिब यहीं हो जाएगी। हाँ यार मुझे भी यही लगता है, हमें वापस चलना चाहिए। क्यों ना 10-15 मिनट और वेट कर लें, अदनान बोला। नहीं गाइस, हमें चलना चाहिए, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। वैसे भी गांव में अंधेरा जल्दी फैल जाता है, सना खौफ से कांपते हुए बोली। 3 कड़ियल जवानों के होते हुए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, हम हैं ना। अम्मार उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाते हुए बोला। चुप गाइस, लगता है कोई आ रहा है, अदनान ने चुप कराते हुए बोला और गले में लटका हुआ कैमरा उतारकर हाथ में थाम लिया और उसे ऑन कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। सामने से एक लड़की तेज कदम उठाते हुए नजदीक आ रही थी, खौफ से आगे पीछे देखते हुए, जैसे उसे कोई डर हो कि कोई उसे देख ना ले। जिस पत्थर के पीछे वो थे उससे थोड़ा फासले पर वो बैठ गई और सामने वाली झाड़ी से एक खुशशक्ल नौजवान निकला। लड़की के चेहरे पर उसे देखकर रौनक आ गई, डर खौफ कहीं दूर चला गया। अरे ये तो सचमुच में कोई लड़का लड़की है, कितने चीप है, छुप छुप कर मिलते हैं, लोगों को डरा रखा है बदतमीजों ने, अम्मार बोला। अदनान ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और सामने देखकर वीडियो बनाने लगा। लड़की अब तेजी से लड़के की तरफ बढ़ी थी। तुम आ गए सावल, मैं तो डर गई थी कि शायद आज ना आओगे। कैसे ना आता जान, तुमसे वादा कर रखा है कि हर जुमेरात को हम यहाँ मिलेंगे। वो उसके चेहरे को थाम कर कह रहा था। फिर वो उसे लेकर एक सामने पड़े पत्थर पर बैठ गया। काफी देर तक दोनों में खामोशी रही। फिर इस वीराने में उस लड़की की आवाज गूंजी। फिर तुमने क्या सोचा सावल, मैं आज भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तुम्हें पता है ना, बाबा और भाइयों ने तुम्हारी वजह से मुझ पर आजकल कड़ी नजर रखी हुई है। मैं क्या करूँ जान, मैंने घर पे बात की है, वो मान ही नहीं रहे, तुम्हारे घर वाले भी राजी नहीं। हम एक काम करते हैं, हम इस गांव से भाग चलते हैं, वो लड़का बोला। नहीं सावल, तुम मेरे बाप और भाइयों को नहीं जानते, वो हमें पाताल से भी ढूंढ लेंगे और वो हमें मार डालेंगे। वो लड़की लड़के के हाथ थामे रो रही थी। तभी सना के पांव पर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया और उसकी चीख निकल गई। सब दोस्तों के साथ साथ वो जोड़ा भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो सब दोस्त उस जोड़े की नजर में आ गए। वो सब घबराए हुए थे, उठ खड़े हुए। इससे पहले कि अदनान उस जोड़े के झूठ का भांडा फोड़ता, एक लम्हे के लिए वो साकित रह गए। वो लड़का सावल उनकी नजरों से गायब हो गया और खूबसूरत लड़की जो रोना भूलकर उन्हें सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से घूर रही थी, एकदम से उसके खूबसूरत चेहरे की जगह एक बदसूरत शक्ल ले ली। ओह माय गॉड, भागो गाइस, ये तो सचमुच भूत हैं। सबसे पहले फैजान को होश आया। वो सब उल्टे पांव भागे जब एक झाड़ी में निम्रा का दुपट्टा उलझ गया। फैजान, वो चीखी। भागते हुए वो एक पल को थमे। तभी गुर्राती हुई गले से अजीब और गरीब आवाज निकालती हुई वो डायन पांव घसीटती हुई निम्रा के करीब जा रही थी। वो चीखती चिल्लाती दुपट्टा छुड़वाती निम्रा मुसलसल फैजान को मदद के लिए बुला रही थी। अदनान ने एक नजर फैजान को देखा जो मुसलसल खौफ से कांपता हुआ नफी में गर्दन हिलाता हुआ पीछे से पीछे जा रहा था। अदनान ने एक लम्हे को सोचा, दूसरे ही पल वो निम्रा की तरफ भागा, मगर इससे पहले वो डायन उड़ती हुई आई और चीखती हुई निम्रा के गले को दोनों हाथों से जकड़ लिया। वो तीनों चीखने लगे। अदनान के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए। दूसरे ही पल
वो इन दोनों के करीब पहुंचा और जोर लगाकर दोनों हाथों से उस बदसूरत डायन को धक्का दिया। धक्के से तो कोई असर ही ना हुआ, मगर अदनान के हाथ लगाते ही उसे करंट लगा था। कितने फुट वो दूर जा गिरी थी। अदनान ने रोती हुई निम्रा को साथ लगाया था। वो उसका सहारा पाते ही खौफ से उसके सीने से जा लगी। झटका खाकर अदनान ने को खड़ा होते हुए देखा और निम्रा का हाथ थामकर वहां से भाग लिया। उसे देखते ही देखते सब दोस्त पीछे भागे। अंधेरा चार सू फैल चुका था और भाग भाग कर उन्हें कोई ठिकाना ही नहीं मिल रहा था। तुम लोग आज इस लड़के की वजह से बच गए हो, मगर अब तुम पांचों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम सबको मार डालूंगी। अंधेरे में डरावनी आवाज गूंज रही थी। वो सब जो एक पल को सांस लेने को थमे थे डर गए। अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर बाद आबादी नजर आई। वहां जाकर दोबारा सांस लिया। तभी फजा में अजान की आवाज गूंज उठी। सबकी नजरें बेसाख्ता अजान की जानिब उठी। कदम खुद ब खुद मस्जिद की जानिब उठ गए। पांचों मस्जिद के ठंडे फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठ गए। घर जाने का वो पांचों वक्त सोच भी न सकते थे। तुम लोगों को साईं बाबा अंदर बुला रहे हैं। वो पांचों गुमसुम से मस्जिद के ठंडे ठार फर्श पर बैठे अपनी अपनी सोचों में गुम थे। जब मुलाजिम नुमा आदमी उनके पास आकर बोला तो सब चौंक कर उसे देखने लगे। कौन साईं बाबा? निम्रा परेशानी से गोया हुई। हमारे मस्जिद के मुअज्जिन हैं। मुलाजिम सर झुकाकर बोला। आप सबको याद फरमा रहे हैं। वो कहकर वापस कमरे में चला गया। वो सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। चलो चलते हैं यार, शायद ये हस्ती हमारी कुछ मदद कर दे। अम्मार कपड़े झाड़ते हुए उठा और कहा। बाकी सब भी उसकी तायद में सर हिलाने लगे और अंदर की जानिब बढ़ गए। पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुए तो सामने चटाई पर कोई बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। वो पांचों चुपचाप एक साइड पर बैठ गए। बाबा साईं नमाज पढ़कर फारिग हुए तो बेहद खामोशी से उन्हें देखने लगे। तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों ने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है? वो काफी देर तक उन्हें घूरने के बाद बोले तो वो सब हैरत से उनका मुंह तकने लगे। ये सब इन्हें कैसे पता चला? तुम सब की जाने खतरे में हैं। तुम लोगों को मशवरा किसने दिया था ऐसी मखलूक से पंगा लेने का? वो सख्त गुस्से में थे। प्लीज बाबा साईं हमें बचा लीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम वादा करते हैं, प्लीज हमारी मदद करें। सना और निम्रा बकदरे रोने लगी थीं, जबकि वो तीनों शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। बाबा साईं लड़कियों को रोते देखकर खामोश हो गए। कितनी देर सर झुकाए हुए बैठे रहे, फिर अदनान को देखकर इशारा करके पास बुलाया। वो घबराया सा उठा और उनके करीब जाकर बैठ गया। तुम जानते हो, आज तुम इस तावीज की वजह से बच गए, वरना तुम्हें आज इस डायन से कोई नहीं बचा सकता था। वो अदनान से गोया हुए। किस तावीज की वजह से? वो हैरान होकर पूछने लगा। फिर उसे अपने बाजू पर बंधे उस तावीज का ख्याल आया जो बचपन में दादी अम्मा ने उसे बांधा था। तब वो बहुत बीमार था। दादी अम्मा ने न जाने कहां से वो तावीज लाकर उसे बांध दिया था, जो आज इस तावीज ने उसकी जान बचाई थी। अब क्या होगा बाबा साईं? क्या हम सब सुबह होते ही यहाँ से चले जाएं? वो परेशान हुआ था। नहीं, वो डायन अब तुम लोगों पर नजर रखे हुए है। वो तुम लोगों को गांव से निकलने ही नहीं देगी। जो भी हो, अगर तुम लोग चले भी गए तो फिर भी वो तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। जो भी उन्हें देख लेता है अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ऐसा क्यों करती है वो है कौन? सना बोली। बेटा, पहले वो लोग हमारी तरह के इंसान थे, इसी गांव के रिहायशी थे। हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती थी। मुसलमान लड़के से मोहब्बत हो गई थी। हर जुमेरात को दोनों इसी पहाड़ी पर मिलते थे। एक दिन लड़की के भाई ने उसे देख लिया, लड़की को बहुत मारा और लड़के को वार्न किया, मगर वो दोनों बाज न आए। भाइयों ने लड़की को एक कमरे में कैद कर लिया। एक रात वो वहां से आजाद हुई और लड़के के पास चली गई। दोनों ने गांव से भागने का प्लान बनाया। इधर उसके भाइयों को पता चल गया। उन्होंने दोनों को जा लिया। लड़के को तो उसी जगह गोलियां मारकर पहाड़ के नीचे गिरा दिया और लड़की को ले जाने लगे तो लड़की ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान ले ली। मरते वक्त उस लड़की ने तय कर लिया था कि किसी भी प्यार करने वाले जोड़े का मिलन नहीं होने देगी। मरने के बाद इस डायन ने पहले अपने भाइयों को मारा, फिर बाप और बाकी खानदान को खत्म कर डाला।
وہ دونوں کی روحیں اب تک بے چین ہیں، ہر جمعرات کو اسی پہاڑی پر ملتی ہیں، اور جو انہیں دیکھ لیتا ہے وہ انہیں اپنا دشمن سمجھتی ہیں اور انہیں مار ڈالتی ہیں۔ بابا صاحب بتا کر چپ ہو گئے۔ ان دونوں روحوں کو کیسے شانتی ملے گی بابا جی؟ عمار بولا، بیٹا اس کا ایک ہی حل ہے، جس پہاڑی سے کود کر اس لڑکی نے جان دی تھی اس کی دوسری طرف ان دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اگر کوئی ڈھونڈ کر انہیں جلا دے تو ان روحوں کو شانتی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم صبح ہوتے ہی ان لاشوں کو ڈھونڈ کر جلا دیں گے۔ فیضان خوشی سے بولا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے بیٹا، اس مسجد سے باہر نکلتے ہی وہ تم سب کو مار ڈالے گی۔ بابا صاحب بولے تو وہ سب پریشان ہو گئے۔ بابا صاحب نے اپنی ملازم کو آواز دی اور وہ بابا جی کا صندوق لے آیا۔ بابا جی نے اسے کھول کر اس کے اندر سے کچھ نکالا اور انہیں دینے لگے۔ یہ تم سب اپنے اپنے گلے میں ڈال لو، چاہے جو مرضی ہو جائے، تم اس تعویذ کو اپنے گلے سے بالکل نہیں اتارو گے۔ جب تک پہنے رہو گے اس ڈائن سے بچے رہو گے، جس دن اتار دیا اس دن مارے جاؤ گے، بابا صاحب نے کہا، اور وہ سب چپ چاپ تعویذ لے کر پہننے لگے۔ تم سب میں سے کسی ایک کے ہاتھوں اس شیطان کی موت لکھی ہے، بدھ والے دن تم لوگ مجھ سے آ کر ملو، میں تم کو ان کی لاشوں کا ٹھکانہ بتاؤں گا، اور جمعرات کو تم لوگ ان کا خاتمہ کرنے جاؤ گے۔ بابا جی نے انہیں سمجھایا تو وہ سر اس بات میں ہلانے لگے۔ اب تم لوگ سو جاؤ، صبح اپنے گھر جانا، اور یاد رکھنا اس گاؤں سے باہر نکلنے کی غلطی بالکل مت کرنا۔ بابا جی بولے تو وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلے دن وہ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے، جب صبح وہ سب جاگنگ کے لیے تیار ہوئے۔ عدنان کو جگہ جگہ کر تھک گئے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ سب اسے سوتا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ 3 گھنٹے بعد کی بات ہے۔ 8 بج رہے تھے جب گھر کا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا۔ بمشکل عدنان نے آنکھیں کھول کر آگے پیچھے دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اسے یاد آیا کہ سب جاگنگ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ آنکھیں ملتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ جمائی لینے کے لیے منہ ہی کھولا تھا جب دروازہ پھر بجا۔ وہ جھنجلاتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے بابا سائیں کھڑے تھے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور تھوڑا حیران بھی۔ وہ جانتا تھا کہ بابا سائیں کبھی اپنے حجرے سے نہیں نکلتے تھے، تو پھر اس کے گھر کیسے آ گئے؟ ارے بابا جی، کوئی کام تھا تو مجھے بلوا لیتے، خود کیوں آ گئے؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ بیٹا بس کام مجھے تھا تم سے، پھر مجھے ہی آنا پڑا۔ وہ مسکرائے۔ آئیے بابا جی، اندر آئیے نا، وہ کہتے ہوئے رستے سے ہٹا اور بابا سائیں اندر چلے گئے۔ عدنان نے آگے بڑھ کر انہیں کرسی پیش کی تو بابا صاحب اس پر بیٹھ گئے۔ بابا جی آپ کیا لیں گے؟ وہ عاجزی سے بولا۔ شکریہ بیٹا، بس مجھے تم سے چھوٹا سا کام ہے۔ بابا جی کہیں نا، بلکہ آپ حکم کریں۔ بیٹا جی، میں نے جو تعویذ دیا تھا وہ تم اپنے پاس ہی رکھو، مگر جو تعویذ تم نے بازو پر باندھ رکھا ہے وہ مجھے دے دو۔ دراصل میرے پاس ایک ضرورت مند آیا ہے، اسے دینا ہے، وہ بولے۔ تو عدنان نے اس بات میں سر ہلا دیا، بازو سے تعویذ اتار کر بابا جی کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچھا بیٹا، میں چلتا ہوں، بابا جی مسکرائے اور ٹیبل پر پڑے تعویذ کو دیکھ کر بولے۔ عدنان بھی جھک کر بابا جی کے گھٹنے چھونے لگا۔ تھینک یو بابا جی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا اور دوسرے ہی لمحے سن رہ گیا۔ بابا جی کی جگہ اب اس ڈائن نے لے لی تھی۔ عدنان کو دیکھ کر وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگی اور عدنان کو اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ ایک پل کو تو عدنان کو لگا جیسے جسم کی تمام ہڈیاں تڑتڑاتی ہوئی ٹوٹی ہوں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا جب ڈائن نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ لمبا کر کے عدنان کو گردن سے پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا۔ دونوں ہاتھ سے گلا دباتے ہوئے زور زور سے قہقہا لگانے لگی۔ ٹھیک اسی وقت ہنستے مسکراتے سب دوست واپس آ گئے تھے، مگر آگے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ فیضان کے ذہن میں آئیڈیا آیا۔ اپنے گلے سے تعویذ اتار کر سامنے قہقہا لگاتی ہوئی ڈائن کی طرف اچھالا تو عدنان کو چھوڑ کر فٹ دور جا گری۔ عدنان کھانستا ہوا سیدھا ہوا اور سامنے گرا تعویذ اٹھا لیا۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی، تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنے والی، سب کو ختم کر دوں گی، وہ ڈائن کہتے ہوئے ان کی نظروں کے سامنے غائب ہو گئی۔ وہ سب عدنان کے قریب چلے گئے۔
तो पागल तो नहीं हो गया? अदनान, तेरा बाबा जी वाला तावीज कहाँ था? अम्मार गुस्से से बोला। वो तो रात को सोते वक्त उतार दिया था, अभी सो रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज पर उठा। अब खुद पर आप बीती सुना रहा था और वो सब सुनते हुए सर पकड़कर बैठ गए। वो सब उस वक्त को पछता रहे थे जब उन्होंने यहाँ आने को सोचा था। ये उससे अगले दिन की बात है। रात के 12 बजे जब सब सो रहे थे, फैजान, अम्मार और अदनान तीनों एक रूम में, जबकि सना और निम्रा दूसरे रूम में थीं। प्यास से अम्मार की आंख खुली, आसपास देखा तो अदनान और फैजान बेसुध पड़े थे। बगैर आवाज पैदा किए वो बिस्तर से उतरा और किचन की तरफ चला आया। पानी पीकर कमरे की तरफ बढ़ा, मगर सहन में सीढ़ियों पर बैठी सना को देखकर ठिठक कर रह गया। सना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात गए? वो हैरान होकर उसके करीब चला गया और सना से पूछा। सना उसे देखकर घबरा सी गई। अम्मार, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए यहाँ चली आई। सना, पागल, नींद नहीं आ रही थी तो मुझे जगा लेती या निम्रा को साथ लेकर आती, वो बोला। दरअसल अम्मार, तुम भी सो रहे थे, इसलिए आज निम्रा भी जल्दी सो गई तो मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा, वो सर झुकाकर बोली। तो पागल, मुझे जगा लेती ना। रियली, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता, वो मुस्कुराया और फिर टांगे फैलाकर उसके साथ वहीं बैठ गया। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? कोई जवाब ना पाकर वो दोबारा बोला। हम घर कब जाएंगे अम्मार? उसे देखकर बोली। इंशाअल्लाह जुम्मे को। हम अपने अपने घरों में इस वक्त सो रहे होंगे। मुझे भी मम्मा बहुत याद आती हैं। तुम्हें पता है ना, इस दफा आते हुए मॉम ने क्या कहा था? हमारे वापस आते ही वो हमारी शादी की डेट फाइनल कर देंगी। रियली, आई एम सो हैप्पी, वो चहक कर बोला तो सना भी मुस्कुरा दी। चलो अब अंदर चलें, वो बोली और उठकर खड़ी हो गई। अंदर जाने को मुड़ी तभी अम्मार ने उसका हाथ पकड़ लिया। सना तो शर्मा गई। कंधों से पकड़कर जब चेहरा सामने किया तो दंग रह गया, क्योंकि वो सना न थी। सना की शक्ल डायल ने ले ली थी। वो गुस्से से अम्मार को घूर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? सांवल की जगह लेने की कोशिश की कमीने। वो अम्मार का सर पकड़कर दीवार से मार रही थी। अम्मार की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी और हैरत अंगेज तौर पर घर में मौजूद किसी भी दोस्त के कानों में उसकी आवाज नहीं पहुंची थी। और सुबह उसे रूम में ना पाकर जब बाहर आ गए तो सहन में सामने वो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। सीधा करने पर चेहरे पर जगह जगह गड्ढे और आंखें और दिल भी अपनी जगह से गायब थे। 2 दिन से निम्रा किसी से भी संभल नहीं पा रही थी। संभल तो वो तीनों भी नहीं रहे थे। इतना बड़ा हादसा कभी सोचा भी ना था। हंसता बसता अम्मार एक दिन यूं छोड़कर चले जाएगा। घर वालों को भी वो बता ना सके। अगर बता देते तो सब यहीं चले आते और उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती। बाबा जी के मशवरे पर नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई और अमानत के तौर पर दफना दिया गया। और अब निम्रा की एक ही रट थी, कहीं से भी अम्मार मुझे ला कर दो। और आज तो हद ही कर दी कि अभी घर जाना है, इसी वक्त जाना है। दुखी तो वो सब थे, मगर बाबा जी ने मना कर रखा था तो क्या करते। अदनान से तो निम्रा की हालत देखी ना गई तो सब छोड़ छाड़ कर वो जाने को उठ खड़ा हुआ। पीछे डरे सर में बाकी दोस्त भी अपने सामान लेकर आ गए। सामान जीप में रखा और सफर स्टार्ट हो गया। जब वो गांव से निकले तो दिन के 3:30 बजे थे और अब जब वो गांव क्रॉस करने वाले थे तो 5 बजने वाले थे। जैसे ही गांव की हुदूद से बाहर कदम रखा, अचानक से मगरिब की तरफ से हवा चली थी, जिसने आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली। अपनी अपनी सीटों को मजबूती से थाम लो, कोई भी नीचे ना उतरे, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अदनान ने चिल्लाकर कहा। सिर्फ 10 सेकंड का तूफान था और मिनटों में थम भी गया। थैंक्स गॉड, हम सब बच गए। लगता है ये भी उसी डायन का वार था, फैजान बोला। मगर अगले ही पल निम्रा चीखी, ओह गॉड, सना कहाँ गई? वो दोनों भी मुड़कर पीछे देखने लगे। अभी तो यही मेरे साथ थी, कहाँ गई? निम्रा रो पड़ी। वो दोनों जीप से बाहर निकले, आगे पीछे देखा, हर जगह देख लिया, मगर सना कहीं ना मिली।
आवाजें दे देकर गले बैठ गए, मगर सना कहीं होती तो मिलती ना। मगरिब से इशा हो गई मगर सना ना मिली। थक हार कर वो लोग एक छोटे से गार में बैठ गए। ये सना की आवाज है ना, तुम लोगों ने सुना? उन्हें बैठे हुए भी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब निम्रा बोली तो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी, फैजान बोला। मैंने सुना फैजान, वो मुझे आवाजें दे रही है, मेरा नाम लिया है उसने। शायद वो रोते हुए मुझे पुकार रही है। निम्रा बैठे से उठ खड़ी हुई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है निम्रा, हमने कुछ नहीं सुना, चुप करके बैठी रहो, आगे ही बहुत परेशानियां हैं। अदनान घुर्रा कर बोला। निम्रा का हाथ पकड़कर नीचे बिठा लिया। मेरा यकीन करो अदनान, अभी भी उसकी आवाज सुनाई दी है, वो रो रही है, वो मुझे पास बुला रही है। वो सिसक उठी। अदनान होंठ बींचकर उसे देखने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं निम्रा, तुम्हें वहम हुआ है। अदनान प्लीज एक बार मुझे बाहर जाने दो, मेरा यकीन करो, वो मुझे बुला रही है, ये मेरा वहम नहीं है, प्लीज। वो फूट फूट कर रो पड़ी। ओके ठीक है चलो। अदनान उसका हाथ थामकर उठ खड़ा हुआ। अदनान ये क्या कर रहा है तू यार? फैजान उसे रोकते हुए बोला। एक दफा देख लेने में क्या हर्ज है, वो बोला। ये पागल हो गई है तो इसकी बातों में आ रहा है, खुद भी मरेगी और हमें भी मरवाएगी। वो गुस्से से बोला। तू यहीं बैठ यार फैजान, हम बस थोड़ा ही आगे जाएंगे और जल्द वापस आ जाएंगे। अदनान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हाँ मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दो, मैं भी साथ ही चलूंगा, वो बोला तो तीनों बाहर निकल आए। अदनान ने अपने मोबाइल से टॉर्च रोशन किया और आगे पीछे लाइट मारने लगा। अब कुछ सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो निम्रा से बोला तो वो नफी में सर हिलाने लगी। तो चलो वापस चलें, वो ये कहते हुए वापस मुड़कर गार की तरफ चले गए। गाइस मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो? वो अभी गार के करीब ही पहुंचे थे कि सामने वाली झाड़ी से निम्रा निकलकर जोर से बोली थी। तीनों घबराकर पीछे मुड़कर देखने लगे। वो अगले ही लम्हे अपने मुंह से निकलने वाली चीख को रोक न सके। सना तुमको क्या हुआ है, तुम कहाँ चली गई थी? निम्रा उसे देखकर सिसकती हुई बोली, मगर करीब खड़े अदनान ने उसे बाजू से दबोच लिया। ये सना नहीं है निम्रा, वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। क्या हुआ निम्रा, रुक क्यों गई? आओ ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे सहारा दो। फैजान अदनान मेरी मदद करो, मुझसे चला नहीं जा रहा। वो लड़खड़ाकर थोड़ी आगे आई। पेशानी और होठों के नीचे से निकला हुआ खून और एक बाजू आधा कटा हुआ नीचे लटक रहा था। वो सना ही थी। निम्रा ने तड़पकर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अदनान उसे मजबूती से थामे हुए था। हम कैसे यकीन करें कि तुम सना हो, वो बोला। व्हाट अदनान, मैं सना हूँ, आई स्वेयर, मेरा यकीन करो, मैं तकलीफ में हूँ, कैसे दोस्त हो तुम? वो रोते हुए बोली। अदनान क्या पता ये वाकई सना हो और हमें इसकी मदद करनी चाहिए, खौफ से कांपता हुआ फैजान बोला। अगर ये सना ही है तो फिर सबूत दे, यकीनन ये वही कमीनी डायन होगी, मुझे यकीन है हमें धोखा दे रही है, वो बोला। हाँ मैं सना नहीं हूँ, मगर याद रखना अब तेरी बारी है। तेरे दो दोस्त तो मेरे धोखे में आ गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे, अब पहले तुझे खत्म करूंगी, समझा? अब इस गांव से निकल कर दिखा। तो सामने खड़ी हुई सना की जगह एकदम वो बदसूरत डायन आ गई जो अब अदनान को घूर कर देख रही थी। अगले ही पल वो वहां से गायब हो चुकी थी। वो सब अब दुख भरी कैफियत में खड़े ये सोच रहे थे कि पहले अम्मार और अब सना इस दुनिया में नहीं रहे, और अगले ही दिन गांव वालों को झाड़ियों में से एक लड़की की लाश मिली। वो सब देखकर दंग रह गए। वो सना ही थी, इसका हाल भी अम्मार जैसा ही था, फर्क सिर्फ इतना था कि सना का एक बाजू नहीं था। अगले दिन वो सुबह होते ही बाबा साईं के पास आ गए। बाबा जी ने इन तीनों की ठीक ठाक क्लास ली। क्या जरूरत थी गांव से बाहर जाने की, जब मैंने मना किया था? तावीज गले से नहीं उतारना था तो फिर तुम लोगों ने क्यों उतारा? 2 दोस्त तो तुम गवा चुके हो, बाकी जो 3 बचे हैं वो भी जल्द खत्म हो जाएंगे। बाबा जी वाकई गुस्से में थे। आई एम सॉरी बाबा जी, मगर रात को सोते वक्त उतारे थे, तावीज की आदत नहीं थी ना, इसलिए, फैजान बोला।
तो बेटा जी आदत नहीं है तो अब भी क्यों पहन रखा है, अभी भी उतार दो ना। बाबा जी मजीद जलाल में आ गए। अदनान उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था और बाबा जी से बोला, बाबा जी कुछ बताएं, अब हमें क्या करना चाहिए। आज बुध है, कल जुमरात का दिन है, कल तुम सुबह सवेरे निकल जाना उस पहाड़ी की तरफ, वहाँ ढेर सारे गार ही गार हैं। तुम लोगों को हर गार चेक करना होगा। इन गारों में से एक गार ऐसा है जिसमें उस जोड़े की लाशें पड़ी हुई हैं। तुम लोगों को किसी भी तरह आग जलाकर उन लाशों को आग में डालना होगा। लाशों के आग पकड़ते ही वो जोड़ा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर एक बात याद रखना तुम लोग, ये सारा काम इतना आसान नहीं है। ये सब करते हुए वो डाइन तुम लोगों की राह में रुकावट पैदा करेगी, मगर तुम लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है। जो डर गया वो मर गया। ये बात अपने पल्लू से बांध लेना। बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा तो सर हिलाने लगे। अगली सुबह वो लोग 10 बजे ही वहाँ से निकल गए। जीप में 1 गैलन केरोसिन रखा। तीनों ने अपने पास अलग अलग माचिस भी संभाल ली। बकौल बाबा जी के उस डाइन ने रास्ते में बहुत सी रुकावटें डाली थीं। ठीक ठाक चलती गाड़ी भी रुक जाती। चलाने पर यूं महसूस होता जैसे बहुत ज्यादा वजन डाल दिया गया हो। कभी टायर्स पंक्चर हो जाते तो कभी कुछ और, कभी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता। मगर वो लोग हारे नहीं थे। 12:30 बजे वो इस पहाड़ी के करीब पहुंचे और गार को तलाश करने लगे। बहुत से गारों की तलाशी लेने के बाद वो एक तंग से गार में भी दाखिल ही हुए थे जब किसी ने पीछे से गार का दहाना किसी बड़े पत्थर से ढककर बंद कर दिया। वो तीनों घबराकर पलटे। पूरा गार अंधेरे में घुप हो गया। निम्रा, फैजान अपने हाथ दो, अदनान बोला और टॉर्च ऑन किया। गार में हल्की सी रोशनी हो गई। वो तीनों मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे, मगर वहां कुछ भी ना था। सारा गार मकड़ी के जालों से अटा हुआ था। अब क्या करें? बाबा जी ने कहा था असर के अजानों से पहले पहले इन लाशों को ठिकाने लगाना होगा। निम्रा बोली, हाँ मगर यहाँ से बाहर कैसे जाएं? फैजान बोला, चलो मिलकर पत्थर को सरकाते हैं, शायद कुछ वसीला ही बन जाए। निम्रा, तुम टॉर्च पकड़ो। अदनान पहले फैजान से बोला, फिर मुड़कर निम्रा को मोबाइल थमा दिया। वो दोनों मिलकर जोर लगाने लगे। 1.5 घंटा वो मुसलसल जोर आजमाई करते रहे। फिर जरा सा अपनी जगह से सरका। वो थक कर बैठ गए। अब क्या होगा? निम्रा परेशान हुई। थोड़ा सांस तो ले लें, फिर ट्राई करते हैं। अदनान लंबी लंबी सांसें लेता हुआ बोला, 2:30 तो बज गए हैं यार, 1 घंटा रह गया है असर की अजान में। फैजान टाइम देखते हुए बोला, चलो फिर ट्राई करते हैं। अदनान ने लंबी सांस खींचते हुए उठ खड़ा हुआ। अगले पौने घंटे में पत्थर इतना सरका कि सिर्फ एक ही बंदा बमुश्किल निकल पाता। एक एक करके वो तीनों बाहर निकले तो बाहर गहरा सन्नाटा था। वो तीनों आगे बढ़े, बाकी गारों की भी तलाशी लेने लगे। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगी। उन तीनों ने मजबूती से एक दूसरे के हाथों को थाम लिया। आंधी जोरों की आई। जब आंधी थमी तो उन्होंने देखा सामने एक डाइन खड़ी थी, जोर जोर से कहकहे लगा रही थी। तभी उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली और पहाड़ के ऊपर पड़े बड़े से पत्थर पर जा गिरी। पत्थर के ऐन नीचे वो तीनों खड़े थे। पत्थर लुढ़कता हुआ तेजी से नीचे आया। अदनान ने फैजान और निम्रा को धक्का देकर खुद भी दूसरी तरफ छलांग लगा दी। फिर उन तीनों के गिरने के बजाय गार के बंद दहाने पर पड़े बड़े पत्थर से जा टकराया और गार के दहाने पर पड़ा पत्थर हट गया और गार का दहाना खुल गया। सामने ही 2 लाशें पड़ी थी, बल्कि अजीबोगरीब किस्म के ढांचे थे जिन्हें देखकर बदन में कपकपी तारी हो गई। अदनान, लाशें मिल गईं। तू एक काम कर, इस डाइन को संभाल, मैं गाड़ी से केरोसिन निकाल कर लाता हूँ। फैजान चिल्लाकर भागा और गाड़ी से केरोसिन निकालने लगा। निम्रा आसपास से झाड़ियां इकट्ठी करने लगी और डायन उड़ती हुई उस गार के दहाने पर जा खड़ी हुई और कुछ पड़कर जमीन की तरफ फूंका तो बड़े बड़े सांप और बिच्छू रेंगते हुए आगे आने लगे। वो तीनों डरकर पीछे हटे और अपने अपने तावीज गले से उतारकर हाथ में बांध दिए। जैसे ही कोई सांप या बिच्छू सामने आता, तावीज के साथ टच होते ही उन्हें आग लग जाती। डायन अपना वार खाली देखकर गुर्राई और फजा में हाथ बुलंद कर लिया। हाथ बुलंद करते ही उसके हाथ में एक बड़ा सा नोकीला सरिये नुमा लोहा आ गया। पूरी ताकत से सामने खड़े अदनान की तरफ फेंका। फैजान ने देखा
عدنان اپنے دھیان میں قریب آتے ہوئے بچھو کو خود سے چھڑوا رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور عدنان کو دھکا دے کر پیچھے کی طرف ہٹایا۔ لوہا عدنان کے بجائے اس کے سینے کو چیرتا ہوا دوسری جانب نکل گیا۔ فیضان! عدنان اور نمرہ مل کر چیخے۔ عدنان ایک ہی جمپ میں فیضان کے پاس تھا۔ گرتے ہوئے فیضان کا سر اپنے شانے سے لگایا۔ فیضان تجھے کچھ نہیں ہوگا، دیکھ ہمت مت ہار، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ چل ہمت کر، گاڑی میں بیٹھ، اس ڈائن کو پھر دیکھ لیں گے۔ عدنان مجھے چھوڑو، نمرہ کو سنبھالو۔ فیضان نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ عدنان پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ ڈائن اب نمرہ کو گھسیٹتے ہوئے جھاڑیوں میں لے جا رہی تھی اور نمرہ زور زور سے چلا کر اسے مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ جا عدنان، پلیز جا، نمرہ کو بچا، میں تیری طرح بہادر نہیں ہوں، فیضان اپنی پرواہ کیے بغیر بولا۔ عدنان اس کا سر نیچے زمین پر رکھ کر تیزی سے اٹھا، قریب پڑی فیضان کی لائی ہوئی کیروسین لے کر غار کی طرف بڑھا۔ غار میں پڑے ڈھانچوں پر ڈھکن کھول کر اچھی طرح ڈال دیا اور جیب سے ماچس کی تیلی نکالی۔ جیسے ہی آگ لگانے لگا تبھی غار کے دہانے پر اس ڈائن کا چہرہ نمودار ہوا۔ عدنان نے ہاتھ میں پکڑے تعویذ کو سامنے کر کے اس ڈائن کو غار میں داخل ہونے سے روکا اور دوسرے ہاتھ سے آگ لگا کر ڈھانچوں پر پھینک دی۔ پورا غار چیخوں سے گونج اٹھا جیسے بہت سی ڈائنیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ ڈھانچے جل کر راکھ ہو گئے اور ایک بار پھر آندھی طوفان آیا اور ساری راکھ اڑا کر لے گیا۔ اب وہاں کچھ بھی باقی نہ تھا، نہ ڈائن اور نہ ہی ان کا جسم اور نہ ہی ان کی راکھ۔ اب عدنان کو نمرہ کا خیال آیا تو وہ جھاڑیوں کی طرف بھاگا۔ قریب ہی جھاڑی میں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ نمرہ مل گئی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ عدنان، فیضان کہاں ہے؟ وہ خوفزدہ ہوئی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ بولا، اور اسے لیے جب فیضان کے پاس آیا تو فیضان اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر چکا تھا۔ آج ان کے بچھڑے ہوئے دوستوں کی 8ویں برسی تھی اور نمرہ سے شادی ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اور نمرہ مل کر ہر سال ان کی برسی ایک ہی دن مناتے تھے، حالانکہ ان تینوں کی ڈیتھ 1-2 دن کے گیپ سے ہوئی تھی۔ وہ دور بہت مشکل تھا۔ ایک ایڈونچر کے طور پر وہ اس گاؤں گئے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا جب وہ جائیں گے تو 5 اور واپس آئیں گے تو 2 رہ جائیں گے۔ آج بھی وہ دن، وہ منظر یاد کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سی یادیں سینہ چیرتی ہوئی اندر آ پہنچتی ہیں، اور وہ دونوں کئی ماہ خود کو سنبھال نہیں پاتے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آپ کے یا کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا کوئی حادثہ ہوا ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ کامنٹ باکس میں اپنی کہانی لکھیں، ہو سکتا ہے اس چینل پر اگلی کہانی آپ ہی کی ہو۔ ہم آپ کے کامنٹس کا بے صبری سے انتظار کریں گے۔ ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے۔